بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے شونے مونے اور پیارے سے لسنرز۔ آج جو ہم نے اس کا باب شروع کرنا ہے وہ ہے 10واں باب، ہیری پوٹر اور پارس کے پتھر کا۔ ہیلوئین کا دن۔ میلفوائے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا جب اس نے دیکھا کہ ہیری اور رون اگلے دن بھی ہاگورٹ میں ہی تھے۔ وہ کسی قدر بوجھل تھکے ہوئے دکھائی دیتے تھے لیکن پوری طرح سے خوش۔ در حقیقت اگلی صبح تک ہیری اور رون سوچ رہے تھے کہ 3 سروں والا خونخوار کتے سے ملاقات واقعی کسی شاندار مہم جوئی سے کم نہیں تھی۔ وہ اسی طرح کا ایک اور کام کرنے کے مشتاق دکھائی دیتے تھے۔ اس درمیان میں ہیری نے رون کو اس پیکٹ کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی تھی جسے ہیگرڈ نے تجوری سے نکالا تھا۔ ہیری نے یہ کیا ظاہر کیا تھا کہ اس پیکٹس کو گرنگوٹس سے نکال کر اب ہاگورٹ میں چھپایا گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک سوچتے رہے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہو سکتی تھی جس کی حفاظت کے لیے اتنا تردد کیا گیا تھا۔ وہ یا تو سچ مچ نہایت قیمتی ہے یا پھر انتہائی خطرناک، رون نے اندازہ ظاہر کیا، یا پھر دونوں ہی، ہیری نے لقمہ دیا، لیکن وہ پورے یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ اس بات پر متفق تھے کہ وہ خفیہ چیز 2 انچ سے زیادہ لمبی نہیں تھی۔ جب تک انہیں کوئی دوسرا سراغ نہیں مل جاتا تب تک وہ اس سے زیادہ اندازہ لگانے کی حالت میں بالکل نہیں تھے۔ اس ضمن میں تو نیبل نے اور نہ ہی ہرمائنی نے کوئی تبصرہ کیا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی دلچسپی کا مظاہرہ کیا کہ وہ 3 سر والا کتا وہاں کیوں تھا اور اس چور دروازے کے نیچے کیا چیز چھپائی گئی تھی۔ نیبل تو صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ دوبارہ اس کتے کے پاس کبھی نہیں جائے گا۔ ہرمائنی نے اب ہیری اور رون سے بات چیت کرنا بالکل ترک کر دیا تھا کیونکہ وہ میں سب کچھ جانتی ہوں قسم کی لڑکی تھی، اسی لیے انہیں اس میں بھی اپنا ہی فائدہ نظر آیا۔ وہ اب صرف اتنا چاہتے تھے کہ میلفوائے سے بدلہ کیسے لیا جائے، اور انہیں تب بہت خوشی ہوئی جب ایک ہفتے بعد ہی ایک ایسی چیز ڈاک سے آ گئی۔ جب الو ہمیشہ کی طرح بڑے ہال میں داخل ہوئے تو سب کا دھیان ایک لمبے اور پتلے پیکٹ پر گیا جسے 6 بڑے الو کٹیلی آواز میں نہایت شور مچاتے ہوئے اٹھائے لا رہے تھے۔ ہر ایک کی طرح ہیری بھی تعجب بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس بڑے پیکٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہیری یہ جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بھی اور بھی حیرانی ہوئی جب الو نیچے کی سمت بڑھے اور انہوں نے پیکٹ کو اس کے سامنے پٹک دیا۔ پیکٹ کے گرنے سے ہیری کا ناشتہ پرسی پر جا گرا۔ الو بھی اڑ کر راستے سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اسی وقت ایک اور الو آ گیا اور اس نے اس پیکٹ کے اوپر ایک خط پھینک دیا۔ یہ اچھا رہا کہ ہیری نے خط کو پہلے کھولا کیونکہ اس میں لکھا تھا، پیکٹ کو ناشتے کی میز پر نہ کھولا جائے۔ ڈیئر ہیری پوٹر، اس میں تمہارے لیے نیا نمبس 2000 بہاری ڈنڈا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ یہ بات سب کو معلوم ہو پائے کہ تمہیں کون سا جادوئی بہاری ڈنڈا مل چکا ہے، ورنہ ان سب کو یہی خواہش ہوگی کہ انہیں بھی یہی بہاری ڈنڈا لے کر دے دیا جائے۔ اولیور ووڈ تمہیں آج رات کو 7 بجے کوڈچ کے میدان میں ملے گا جہاں تم پہلی بار اس کھیل کو سمجھو گے۔ پروفیسر میکگونیگل۔ ہیری نے جب خط کو رون کو پڑھنے کے لیے دیا تو اس سے خوشی چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ نمبس 2000، رون حسدانہ انداز میں کہا، میں نے تو آج تک اسے چھوا بھی نہیں ہے۔ وہ حال سے جلدی چل پڑا کیونکہ وہ اپنی جماعت میں جانے سے پہلے تنہائی میں اس پیکٹ کو کھول کر دیکھنا چاہتا تھا۔ بہاری ڈنڈے کی شکل دیکھنے کے لیے وہ دونوں بے چین تھے۔ ابھی وہ گریفنڈر ہال سے نصف فاصلے پر ہی پہنچ پائے تھے کہ اسی وقت انہوں نے دیکھا اوپر جانے والی سیڑھیوں پر کریب اور گوئل راستہ روک کر کھڑے تھے۔ میلفوائے نے آگے بڑھ کر ہیری سے پیکٹ چھین لیا اور اسے اپنی انگلیوں سے ٹٹولنے لگا۔ یہ تو بہاری ڈنڈا لگتا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور اسے ہیری کی طرف پھینکتے ہوئے منہ بنایا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے اسے پیکٹ کا راز جان کر بے حد بیزاری ہوئی اور وہ نفرت اور حسد کے ملے جلے جذبات میں ہچکولے کھانے لگا۔ اس بار تم نے حد ہی پار کر دی پوٹر، سال اول کے طلبہ کو بہاری ڈنڈا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رون خود کو روک نہیں پایا۔ یہ کوئی ایسا ویسا بہاری ڈنڈا نہیں ہے، وہ فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بولا، یہ تو نمبس 2000 ہے۔ تم نے کیا کہا تھا؟ تمہارے گھر میں کون سا بہاری ڈنڈا ہے؟ کومیٹ 260، رون نے ہیری کی طرف دان نکالتے ہوئے کہا۔ کومیٹ 260 بھڑکیلا اور چمکیلا ضرور ہوتا ہے مگر اس میں نمبس جیسی بات نہیں ہوتی۔ اس بارے میں تم کیا جانو ویزلی، تم تو اس کا آدھا دستہ بھی نہیں خرید سکتے۔ میلفوائے نے پلٹ کر جواب دیا، مجھے لگتا ہے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو تو پائی پائی جوڑ کر اس کی ایک ایک ڈنڈی خریدنا پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ رون کوئی جواب دے پاتا، پروفیسر فلٹوک میلفوائے کی بغل کے نیچے سے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے سب کی طرف گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، جھگڑا تو نہیں ہو رہا لڑکو؟ انہوں نے کڑک دار آواز میں پوچھا۔
प्रोफेसर पॉटर को किसी ने बाहरी डंडा भेजा है, मेलफॉय ने सरस से कहा। हाँ हाँ सही है, प्रोफेसर फिल्डविक ने हैरी की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने मुझे इसकी खसूसी इजाजत के बारे में आगाह किया था। पॉटर, ये कौन सा मॉडल है? निम्बस 2000 है जनाब, हैरी ने जल्दी से जवाब दिया। मेलफॉय के चेहरे पर दहशत के तासुरात देखकर हैरी से अपनी हंसी रोकी ना जा रही थी। और सच कहा जाए तो मुझे मेलफॉय का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसी की बदौलत मुझे ये मिल पाया है। हैरी और रॉन ऊपर की मंजिल की तरफ चल दिए। मेलफॉय के गुस्से और बौखलाहट को देखकर वो अपनी हंसी दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। जब वो संगे मरमर की सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे तो हैरी ने हंसते हुए कहा, और क्या, ये सच ही तो है। अगर उसने नेवल की याददाश्ती गेंद नहीं उठाई होती तो मैं आज टीम में शामिल ना होता। तो तुम्हारा ये ख्याल है कि ये कवानीन तोड़ने का इनाम है? उनके बिल्कुल पीछे से एक गुसीली आवाज सुनाई दी। हरमाइनी ग्रेंजर सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए ऊपर आ रही थी और हैरी को हाथ में दबे हुए पैकेट को चिढ़कर देख रही थी। मैं तो समझ रहा था कि तुम हमसे बात ही नहीं करना चाहती थी, हैरी ने कहा। हाँ, अब ऐसा करना खत्म मत करो, इससे हमारा बहुत भला हो रहा है, रॉन ने कहा। ये सुनकर हरमाइनी हवा में अपनी नाक तानकर पैर पटकती हुई चली गई। उस दिन हैरी का दिल कमरा जमात में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका जहन तो अपने कमरे में ही भटक रहा था, जहां उसका नया भारी डंडा बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था, या फिर उसका दिल क्यूडिच के मैदान में कहीं घूम रहा था, जहां वो इस रात क्यूडिच खेलने के लिए जाने वाला था। फिर वो रॉन के साथ तेजी के साथ दौड़ते हुए बलाई मंजिल पर चढ़ा गया, ताकि आखिरकार वो अपना निम्बस 2000 देख सके। जब जादुई बहारी डंडा हैरी के बिस्तर पर खुलकर बाहर आया तो रॉन के मुंह से हसरत भरी गहरी आह निकल गई। हैरी बहारी डंडे के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे ये भी बेहतरीन लगा। पतले और चमकते हुए भारी डंडे का दस्ता मागून की लकड़ी का बना हुआ था। उसके आखिरी सिरे पर साफ और सीधे नरम तिनकों की लंबी दुम थी। ऊपर की तरफ सुनहरे रंग में निम्बस 2000 के अल्फाज नक्श थे। जब 7 बजे का वक्त हुआ तो हैरी किले से बाहर निकला और धुंधलके में क्यूडिच के मैदान की तरफ चल पड़ा। वह इससे पहले कभी भी इस स्टेडियम में नहीं आया था। मैदान के चारों तरफ बुलंदी पर सैकड़ों नशिस्तें दिखाई दे रही थीं, जो लकड़ी के बड़े खंभों पर लगे शहतीरों की चौखट में रखी गई थीं। दरअसल इसीलिए ऊंचाई पर बनाई गई थी कि तमाशाई इतनी ऊंचाई पर रहें जहां से वो हवा में देख सकें कि खेल में क्या हो रहा है। मैदान के दोनों किनारों पर 3-3 सुनहरे खंभे नस्ब थे, जिनकी बड़ाई सिरों पर गोल छल्ले बने हुए थे। इन्हें देखकर हैरी को प्लास्टिक की वो छोटी छड़ियां याद आ गईं, जिनसे बच्चे बुलबुलें निकालते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये खंभे 50 फीट ऊंचे थे। ओह पॉटर, नीचे उतरो। ओलिवर वुड आ चुका था। इसके कंधे पर लकड़ी का एक बड़ा संदूक जमा हुआ था। हैरी हवा में तैरता हुआ उसके पास जमीन पर उतर गया। बहुत उम्दा, वुड ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं समझ सकता हूँ प्रोफेसर मैकगोनागल का क्या मतलब था। तुम में सचमुच पैदाइशी उड़ान वाली खूबियां दिखाई दे रही हैं पॉटर। मैं आज शाम सिर्फ तुम्हें क्यूडिच के कवानीन ही समझाऊंगा। इसके बाद तुम्हें हफ्ते में 3 दिन टीम के साथ बाकायदा मशक करनी होगी। उसने संदूक का ढकना खोला। अंदर 4 अलग किस्म की गेंदें रखी हुई थीं। देखो, वुड ने कहा, क्यूडिच को समझना बहुत आसान है, हालांकि इसे खेलना इतना आसान नहीं है। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसमें से 3 को नकाश कहते हैं। 3 नकाश, हैरी ने दोहराया। जब वुड ने फुटबॉल जैसी एक चमकती हुई बड़ी सुर्ख गेंद बाहर निकाली तो वो बोला, इस गेंद को कवाफ कहते हैं। नकाश कवाफ को हासिल करने के लिए एक दूसरे को देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उसे सामने दिखाई देने वाले छल्ले में से गुजार दें। इन छल्लों को कुफल कहा जाता है। जब कवाफ कुफल में से गुजरती है तो टीम को एक गोल करने पर 10 पॉइंट मिलते हैं। समझ रहे हो ना? वुड ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नकाश कवाफ को लेकर एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं और पॉइंट हासिल करने के लिए उसे कुफल में से गुजारते हैं, हैरी ने दोहराया। तो ये एक तरह का बास्केटबॉल है, जो जादुई भारी डंडे पर सवार होकर 6 कुफलों के साथ खेला जाता है ना? बास्केटबॉल क्या होता है? वुड ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, समझाना मुश्किल है, हैरी ने जल्दी से कहा। दोनों टीमों में एक एक खिलाड़ी राखा होता है। मैं ग्रीफिंडर की टीम का राखा हूँ। मैं अपने कुफलों के चारों तरफ उड़ता रहता हूँ और दूसरी टीम की कुफल में कुफाफ डालने की हर कोशिश को नाकाम बनाता रहता हूँ। यानी मेरा काम यही है कि सुर्ख गेंद को इन्हीं छल्लों में ना डालने दूं, ताकि वो गोल या पॉइंट्स हासिल ना कर पाएं। वुड ने उसे मजीद बताया। 3 नकाश, एक राखा, हैरी ने कहा, जो सब कुछ याद रखने के इरादे से वहां आया था। वो 3 कफाफ के साथ खेलते हैं। ठीक है, मैं इतना समझ गया हूँ। बाकी गेंदें किस लिए हैं? हैरी ने संदूक में रखी बाकी 3 गेंदों की तरफ इशारा किया।
अभी बताता हूँ, इसे जरा पकड़ो, वुड ने कहा। उसने हैरी को एक छोटा सा डंडा थमा दिया जो कुछ कुछ बेसबॉल के बल्ले जैसा था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बॉल्जर क्या होता है, वुड ने कहा। इन दोनों गेंदों को बॉल्जर कहते हैं। उसने हैरी को एक जैसी दो गेंदें दिखाई जो पूरी तरह स्याह थीं और सुर्ख कबाब से किसी कदर छोटी थीं। हैरी ने देखा कि वो इन रस्सियों से बाहर निकलने के लिए बेकरारी का मुजाहिरा कर रही थीं, जिनकी वजह से वो संदूक के अंदर बंधी हुई थीं। पीछे हट जाओ, वुड ने हैरी को खबरदार किया। वो झुका और उसने एक बाल्डर को रस्सियों से आजाद कर दिया। स्याह गेंद फौरन बिजली की तरह हवा में उछली और सीधी ऊपर उठती चली गई। कुछ दूर जाकर वो मुड़ी और सीधी हैरी के चेहरे की तरफ झपटी। अपनी नाक टूटने के खतरे को भांपते हुए हैरी पीछे हटा और फिर इसने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा जोर से घुमाते हुए उसे दे मारा। गेंद एक बार फिर हवा में सनसनाती हुई चली गई। वो उसके सर के ऊपर चारों तरफ चक्कर काट रही थी। इस बार वो दायरवी अंदाज में घूमते हुए सीधे वुड की तरफ झपटी, जो बचते हुए इसके ऊपर कूद पड़ा और उसे जमीन पर गिराकर पटकने लगा। देखो, वुड हाँफ रहा था। झिंझलाए हुए बाल्जर को उसने वापस संदूक में डाल दिया और महफूज अंदाज में बांधने लगा। बाल्जर मैदान में चारों तरफ रॉकेट की तरह घूमते रहते हैं और खिलाड़ियों को इनके भारी डंडे से गिराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हर टीम में उनसे निबटने के लिए दो पिटाऊ होते हैं। वीजली जुड़वा भाई हमारी टीम में पिटाऊ हैं। ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को बाल्जर के हमलों से बचाएं और इन पर जर्ब लगाकर इन्हें दूसरी टीम के खिलाड़ियों की तरफ भेज दें। मुझे लगता है कि तुम सब समझ गए होगे। 3 नकाश कबाब के साथ गोल करते हैं, एक राखा गोल की हिफाजत करता है, 2 पिटाऊ बाल्जरों को अपनी टीम से दूर रखते हैं, हैरी ने दोहराया। शानदार, वुड ने हंसकर कहा। वैसे क्या कभी बाल्जर ने किसी खिलाड़ी को हलाक किया है, हैरी ने पूछा और कोशिश कर रहा था कि वुड को इस सवाल में इसके खौफ की झलक दिखाई ना दे। हॉगवर्ड में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अलबत्ता यहाँ पर 2-4 लोगों के जबड़े जरूर टूट गए हैं, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वुड ने लापरवाही से कहा। तो हैरी का दिल धक करके रह गया। और अब क्यूडिच का सबसे अहम खिलाड़ी मतलाशी, जो कि तुम हो, और तुम्हें बॉल्जर या कबाब के बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, वुड ने संजीदगी से कहा। जब तक के वो मेरा सर न फोड़ डालें, हैरी ने धीमी आवाज में लुकमा दिया। फिक्र मत करो पॉटर, बिजली जुड़वा बाल्जरों से निपटने के लिए काफी हैं। मेरा मतलब है वो खुद किसी बाल्जर से कम नहीं है, वुड ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद वुड ने संदूक में हाथ डाला और चौथी और आखिरी गेंद बाहर निकाली। कवाफ और बाल्जर के मुकाबले में ये निहायत छोटी गेंद थी, जो बिल्कुल अखरोट की मानी दिखाई दे रही थी। वो भड़कीली, चमकदार और खुश शक्ल गेंद थी। उसमें फड़फड़ाते हुए चांदी के 2 छोटे पर लगे हुए थे, जो किसी तितली की मानी फड़फड़ा रहे थे। इसे सुनहरी चिड़िया कहते हैं, वुड ने गंभीर लहजे में कहा। ये गेंद सबसे अहम और गैर मामूली हैसियत की हामिल है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये इतनी तेज उड़ती है कि आसानी से दिखाई दे पाती। सुनहरी चिड़िया को पकड़ना मतलाशी की जिम्मेदारी होती है। तुम्हें निकाश, पटाऊ, कवाफ, बाल्जर और राखे के दरमियान में से होते हुए इसे पकड़ना है, इससे पहले कि दूसरी टीम का मतलाशी बढ़कर इसे पकड़ ले, क्योंकि जो मतलाशी सुनहरी चिड़िया को पकड़ता है वो अपनी टीम के लिए इकट्ठे 100 पॉइंट्स हासिल करता है। इस तरह इसकी टीम लगभग हमेशा जीत जाती है। याद रखो कि मतलाशियों के खिलाफ बड़ी जबरदस्त मुजाहमत होती है। क्यूडिच का मैच तभी खत्म होता है जब सुनहरी चिड़िया पकड़ ली जाती है। अगर सुनहरी चिड़िया पकड़ी ना जा सके तो ये मैच कई सालों तक जारी रह सकता है। जहां तक मुझे मालूम है, रिकॉर्ड मैच 3 माह तक जारी रहा था। इस मैच में बार बार बैठे हुए इजाफी खिलाड़ी दूसरे की जगह लेते रहे थे, ताकि थके हुए खिलाड़ी कुछ देर तक सो सकें, वुड ने रुक कर कहा। तो इस तरह खेला जाता है क्यूडिच। तुम्हारे जहन में कोई सवाल? हैरी ने इनकार में अपना सर हिलाया। वो समझ गया कि उसे क्या करना था। बस ये सब अमली तौर करना बाकी था, जो शायद किसी कदर मुश्किल साबित हो सकता था। हम इस वक्त सुनहरी चिड़िया के साथ मश्क नहीं करेंगे, वुड ने गेंद को हिफाजत के साथ संदूक में बंद करते हुए कहा। अंधेरा हो चुका है, ये गुम हो सकती है। इसकी बजाय हम इससे मश्क करेंगे। उसने अपनी जेब से गोल्फ की आम सी गेंदों का थैला निकाला। कुछ मिनट बाद वो और हैरी हवा में उड़ रहे थे। वुड जितनी तेजी से गोल्फ की गेंद फेंक सकता था, हर सिमत में फेंक रहा था, ताकि हैरी उसे पकड़ सके। हैरी ने हर गेंद पकड़ ली और वुड बहुत खुश हुआ था। आधे घंटे की मशक के बाद सचमुच रात हो गई और उन्हें अपना खेल खत्म करके जमीन पर उतरना पड़ा। जब वो किले की तरफ लौट रहे थे तो वुड ने खुशी से चहकते हुए कहा, इस साल क्यूडिच कप पर हमारा नाम लिखा हुआ है। मुझे कतन हैरत नहीं होगी अगर तुम चार्ली बिजली से भी अच्छे खिलाड़ी साबित हुए। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर चार्ली ड्रैगन की पढ़ाई के चक्रों में ना उलझ गया होता तो वो इंग्लैंड के लिए खेल सकता था।
ہفتے میں 3 دن ہیری شام کو کوئڈچ کی مشقیں کرنے لگا اور ہوم ورک تو روز ہی کرنا پڑتا تھا۔ شاید اس لیے وہ اتنا مصروف رہتا تھا، اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ اسے ہوگورٹ آئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ہیری کو یقین نہیں ہو رہا تھا، قلعہ اسے اپنے گھر کی طرح محسوس ہونے لگا تھا، جبکہ پرائیویٹ اسٹریٹ میں اسے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کی پڑھائی بھی اب پہلے سے کافی حد تک دلچسپ ہو گئی تھی، کیونکہ اب وہ تمام بنیادی باتیں سیکھ چکا تھا۔ جب وہ لوگ ہیلووین کے دن سو کر بیدار ہوئے تو بھنے ہوئے کدو کی تیز بو تمام راہداریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے بھی شاندار بات یہ تھی کہ پروفیسر فیلڈ وک نے جادوئی کلمات کی جماعت میں یہ کہا کہ ان کے خیال میں اب وہ ہلکی پھلکی اشیاء کو اڑا سکتے تھے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ تب سے بےتاب تھے جب پروفیسر فیلڈ وک نے ان کے سامنے نیول کے مینڈک کو پورے کمرہ جماعت میں اڑا کر دکھایا تھا۔ پروفیسر فیلڈ وک نے مشق کرنے کے لیے تمام طلبہ کو جوڑیوں کی شکل میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہیری کا ساتھی سیمس فنیگن بنا، جو اطمینان بخش بات تھی کیونکہ نیول اس کا دھیان کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال رون کو ہرمائنی گرینجر کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ اس وجہ سے رون زیادہ غصے میں تھا یا ہرمائنی۔ جس دن ہیری کا جادوئی بہاری ڈنڈا آیا تھا، اس دن کے بعد سے ہرمائنی نے ان دونوں سے بات نہیں کی تھی۔ آپ لوگ جس طرح کلائی گھمانے کا سبق یاد کر رہے ہیں اسے مت بھولیں، پروفیسر فیلڈ وک نے کوں کوں کرتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ کتابوں کے ڈھیر پر کھڑے ہوئے تھے۔ گھمانا اور جھٹکنا، یاد رہے گا نا؟ گھمانا اور جھٹکنا۔ جادوئی کلمے کو صحیح طرح ادا کرنا بھی نہایت ضروری جزو ہے۔ باری فیو نام کے جادوگر کو کبھی مت بھولیے گا، جس نے ایک کہنے کے بجائے ایک کہہ ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا اگلے ہی پل وہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے سینے پر ایک بھینسا کھڑا تھا۔ یہ بہت مشکل تھا۔ ہیری اور سیمس نے گھمایا اور جھٹکا، لیکن جس پنکھ کو وہ ہوا میں اڑانے کی کوشش کر رہے تھے وہ ڈیسک پر پڑا رہا۔ سیمس اتنا بے چین ہو گیا کہ اس نے اپنی چھڑی سے پنکھ کو ہلایا اور اس میں آگ لگا دی۔ ہیری کو اپنے ٹوپی سے یہ آگ بجھانی پڑی۔ اگلے ڈیسک پر رون کی قسمت کچھ بہتر نہیں تھی۔ اڑن شوتم محرکم، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے لمبے بازوؤں کو پون چککی کی مانند ہلا رہا تھا۔ وہ کسی حد تک جھنجھلایا ہوا دکھائی دے رہا تھا، معلوم نہیں اس پنکھ پر یا ہرمائنی پر۔ تم اس جادوئی کلمے کو غلط لہجے میں ادا کر رہے ہو۔ ہیری نے سنا کہ ہرمائنی رون کو جھڑک رہی تھی۔ یہ اڑن شوتم متحرکم ہے، تم اپنے منہ کی تھوک کو قابو میں رکھو اور اڑن شوتم محرکم کے بجائے درست تلفظ ادا کرو۔ اگر تم اتنی ہی چالاک ہو تو تم اپنا پنکھ کیوں نہیں اڑا لیتی؟ رون نے گررا کر کہا۔ ہرمائنی نے اپنے گاؤن کے بازو چڑھائے، چھڑی ہلائی اور دھیمے انداز میں جھٹکا اور بولی، اڑن چھوتم متحرکم۔ اس کا پنکھ ڈیسک پر کانپا اور پھر اوپر کی طرف اڑنے لگا۔ ہرمائنی کی پوری توجہ پنکھ پر تھی۔ پنکھ ان کے سروں سے 4 فٹ اوپر ہوا میں اچھل رہا تھا۔ آہا، بہت شاندار، لاجواب، پروفیسر فیلڈ وک نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ سب لوگ دیکھیں، مس گرینجر نے یہ کر دکھایا ہے۔ جماعت کا وقت ختم ہونے تک رون کا مزاج بے حد بگڑ چکا تھا۔ جب وہ پرہجوم راہداری میں راستہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو رون نے ہیری سے کہا، کوئی حیرانگی نہیں کہ کوئی بھی اسے برداشت نہیں کر پایا۔ سچ پوچھو تو وہ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح ہے۔ اسی لمحے کسی نے پاس سے گزرتے ہوئے ہیری کو دھکا دیا۔ یہ ہرمائنی تھی۔ ہیری کو اس کے چہرے کی ایک جھلک دکھائی دی تھی اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے لگتا ہے اس نے تمہاری بات سن لی ہے، ہیری نے آہستگی سے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ رون نے لاپرواہی سے کہا، لیکن وہ تھوڑا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ہرمائنی اپنی جماعت میں نہیں آئی اور پوری دوپہر کہیں دکھائی نہیں دی۔ جب ہیلووین کے دن کی ضیافت کا آغاز ہونے والا تھا تو رون اور ہیری بڑے ہال میں جانے کے لیے نیچے اتر رہے تھے تو پاروتی پٹیل اور لیونڈر کی باتیں ان کے سماعت میں پڑیں۔ پاروتی لیونڈر کو بتا رہی تھی کہ ہرمائنی لڑکیوں کے باتھ روم میں رو رہی تھی اور چاہتی تھی کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ رون یہ سن کر اور بھی پریشان ہو گیا، لیکن ایک پل بعد وہ بڑے ہال میں پہنچ گئے جہاں ہیلووین کی سجاوٹ دیکھ کر وہ ہرمائنی کو یکسر فراموش کر بیٹھے۔ 1000 زندہ چمگادڑیں دیواروں اور چھتوں سے پھڑپڑاتے ہوئے نیچے آئیں، جبکہ 1000 چمگادڑیں سیاہ بادلوں کی طرح میزوں کے اوپر منڈلا رہی تھیں، جس کی وجہ سے کدوؤں کے کھوکھلے پیٹ میں رکھی موم بتیاں ہلنے لگیں۔ ضیافت اچانک سنہری پلیٹوں میں سامنے آئی، بالکل سال کی ابتدائی ضیافت کی مانند۔ جب ہیری اپنی پلیٹ میں ایک بھنا ہوا آلو رکھ رہا تھا
کہ उसी वक्त प्रोफेसर क्यूरल हाल में दौड़ते हुए आए। उनकी पगड़ी बेढंगे अंदाज में टेढ़ी हो रही थी और उनके चेहरे पे गहरी दहशत छाई हुई थी। हाल में बैठे हुए तमाम लोगों का ध्यान उन पर मुर्तकज हो गया था। वह लड़खड़ाते कदमों के साथ प्रोफेसर डंबलडोर की कुर्सी के पास पहुंचे और चबूतरे वाली मेज पर हाथ रखकर हांफते हुए बोले, तो राल तह खाने में घुस आया है। ख्याल आया कि आपको खबर कर देना चाहिए। अगले ही लम्हे वो हवा में लहराया और फर्श बोस हो गया। वो बेहोश हो चुका था। हर तरफ हंगामा सा मच गया। सबको पुरस्कून करने के लिए प्रोफेसर डंबलडोर को अपनी छड़ी से कई अर्गवानी पटाखे चलाने पड़े। मॉनिटर्स, वो गरजते हुए बोले, अपने अपने फ्रीक को फौरन उनके कमरों में ले जाएं। पर्सी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। मेरे पीछे पीछे आओ, सब के सब इकट्ठे रहो। साले अव्वल के बच्चों, तुम मेरे हुक्म के मुताबिक फौरन अमल करो। तोराल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ठीक पीछे आओ, जल्दी, रास्ता छोड़िए। साले अव्वल के बच्चे आ रहे हैं। माफ कीजिए, मैं ग्रीफिंडर का मॉनिटर हूँ। तोराल क्या होता है? हैरी ने रोन की तरफ मुतहैयर अंदाज में देखा। तोराल 15 से 20 फीट लंबा और मोटा तगड़ा मागल होता है। वो जादूगर नहीं होता, बिल्कुल बर्फानी इंसानों जैसा दिखाई देता है, मगर उन जितना सफेद नहीं। तोराल के सर छोटे और पांव दुगने बड़े होते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि उन्हें कोई अक्ल नहीं होती। रोन चलते हुए बोलता चला गया। हैरी हैरत से मुंह फाड़े उसकी तरफ देख रहा था। तोराल अंदर कैसे घुस सकता है? हैरी ने सीढ़ियां चढ़ते हुए सवाल किया। मुझे क्या मालूम, वैसे वो सचमुच अहमक होता है, रोन ने कहा। शायद पीव्स ने उसे अंदर घुसाकर हैलोवीन का मजाक किया हो। वो अलग अलग इतराफ में तेजी से भागते हुए लोगों के कई ग्रोहों के पास से गुजरे। जब वो हफल पफ के पास परेशान हाल बच्चों की भीड़ के बीच में से जा रहे थे तो उसी वक्त हैरी ने अचानक रोन का हाथ पकड़ लिया। मुझे अभी अभी याद आया, हरमाइनी, हैरी जल्दी से पूछा। हैरी जल्दी से बोला। हरमाइनी? रोन ने हैरत से कहा। उससे तोराल के बारे में मालूम नहीं है, हैरी चीखते हुए बोला। रोन होंठ काट कर रह गया। उसने सर उठाकर आगे की तरफ देखा। अच्छा ठीक है, पर्सी से नजर बचाकर उसने फैसलाकुन अंदाज में कहा। नीचे झुकते हुए वो लोग हफल पफ के बच्चों में मिल गए जो दूसरी सिमत में भागते जा रहे थे। फिर वो एक खाली राहदारी में चल दिए और उसके बाद तेजी से लड़कियों के बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। वो अभी मोड़ पर मुड़े ही थे कि उसी वक्त उन्हें अपने पीछे तेजी से आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। पर्सी, रोन बड़बड़ाया और उसने हैरी को पत्थर के एक बड़े स्तून के पीछे खींच लिया। उन्होंने स्तून के पीछे से झांक कर देखा कि पीछे आने वाला पर्सी नहीं बल्कि प्रोफेसर स्नेप थे। वो राहदारी से गुजरे और उनकी निगाहों से ओझल हो गए। वो यहाँ क्या कर रहा है? हैरी ने हैरत भरे अंदाज में सरगोशी की। वो बाकी उसाजा के साथ तह खाने में क्यों नहीं गया? मुझे क्या मालूम, रोन ने टका सा जवाब दिया। कोई आवाज पैदा किए बगैर वो स्नेप के ओझल होते कदमों के पीछे पीछे अगली राहदारी में आगे बढ़े। क्या तुम्हें बदबू आ रही है? हैरी ने सांस खींची और उसकी नाक में तेज बदबू का भभूका घुस गया। पुरानी जुराबों और कभी ना साफ होने वाले गंदे टॉयलेट जैसी बदबू एक साथ आ रही थी। फिर उन्होंने एक आवाज सुनी, एक धीमी गुर्राहट, कभी हैकल कदमों की धमक, किसी के पांव घसीटने की आहट। रोन ने इशारा किया। बाएं तरफ की राहदारी के मोड़ पर कोई बड़ी सी चीज उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो जल्दी से अंधेरे साये में सिमट गए। एक कभी हैकल चीज का साया फर्श पर बिखरी हुई चांदनी के टुकड़े पर उभरा। वो बहुत खौफनाक तोराल था। वो 12 फीट ऊंचा था। उसकी जिल्द फीके संखारा की मानित भूरी थी। उसका गिल्टियों भरा बदन किसी भारी पहलवान की तरह था। उसके गुब्बारे के मानित फूले बदन के ऊपर एक छोटा सा गंजा सर किसी नारियल की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी टांगें बिल्कुल सीधी, मोटी, किसी पेड़ के तने की तरह थीं, जिसके नीचे हथौड़े जैसे पांव थे। पांव के नाखून बड़े हुए और कांटेदार मालूम होते थे। उसके बदन से बहुत नागवार बदबू आ रही थी, जो बर्दाश्त से बाहर थी। उसके हाथ में लकड़ी की बहुत बड़ी और मोटी लठ थी, जो उसके लंबे बाजुओं की वजह से जमीन पर घिसट रही थी। तोराल एक दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसने अंदर झांका। उसके लंबे कान हिलते हुए दिखाई दिए, जैसे वो किसी आहट को सुनने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने छोटे सर में मौजूद दिमाग को झटका और कुछ सोचा, फिर झुककर दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। चाबी दरवाजे में लगी हुई है, हैरी बड़बड़ाया। हम उसे अंदर ही बंद कर सकते हैं। बहुत शानदार तजवीज है हैरी, रोन ने घबराते हुए जवाब दिया। वो खुले दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़े। उनके होंठ सूख रहे थे और वो दिल में दुआएं कर रहे थे कि तोराल बाहर ना निकल आए। एक लंबी छलांग भरते हुए हैरी ने चाबी अपने कब्जे में कर ली और फिर ताला लगा दिया।
हाँ, अब ठीक है, हैरी खुश होकर बोला। वो अपनी कामयाबी पर मसरूर होकर वो लोग राहदारी में भागते हुए वापस लौटे। अभी वो मोड़ तक भी नहीं पहुंचे थे कि इन्हें कुछ सुनाई दिया, जिसके बाइस उनका दिल धक करके रह गया। एक तेज सहमी हुई चीख, और ये उसी कमरे से आ रही थी जिस पर उन्होंने एक पल पहले कुफल डाल दिया था। अरे नहीं! रोन चीखता हुआ बोला, जो खूनी नवाब की तरह यकदम जर्द पड़ गया था। वो लड़कियों का बाथरूम था, हैरी घबराए हुए अंदाज में बोला। हरमाइनी! दोनों एक साथ बोले। वो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो पलटे, भागते हुए वो उसी दरवाजे के पास पहुंचे। दहशत की वजह से चाबी सुराख में डालना बेहद दुश्वार हो रहा था। बुखलाए हुए अंदाज में हैरी ने चाबी घुमाई तो दरवाजा खोल दिया। वो लोग अंदर की तरफ दौड़ते चले गए। हरमाइनी ग्रेंजर सामने वाली दीवार से टेक लगाए हुए थी, और ऐसा लगता था जैसे वो बेहोश होने वाली थी। तो राल उसकी तरफ बढ़ रहा था और चलते चलते दीवारों के साथ लगे हुए वॉश बेसिन तोड़ता जा रहा था। उसका ध्यान बटाओ, हैरी ने बेचैन होकर कहा, और एक टूटा हुआ पत्थर उठाकर पूरी कुवत के साथ दीवार की तरफ उछाल दिया। बाथरूम में पत्थर टकराने की तेज आवाज गूंजी। तो राल हरमाइनी से कुछ फीट के फासले पर अचानक रुक गया। वो चारों तरफ देखने लगा। वो अहमकाना अंदाज में होंकों की तरह आंखें झपकाता रहा। शायद वो ये अंदाजा लगा रहा था कि आवाज किस तरफ से आई है। उसकी छोटी कटीली आंखों ने हैरी को ताक लिया था। वो ठटका, फिर हरमाइनी की बजाय हैरी की तरफ बढ़ा, और चलते हुए अपना लट सर से बुलंद उठा लिया। शायद वो हैरी को किसी मक्खी की तरह कुचल देना चाहता था। ओ भोंदू कहीं के! रोन कमरे के दूसरी तरफ से चीखा, और उसने तोराल पर लोहे का टूटा हुआ पाइप खींचकर दे मारा। तोराल को यह पता भी नहीं चला कि उसके कंधे से पाइप टकराया था, लेकिन उसने चीख सुन ली थी। वो एक बार फिर रुक गया, और उसने अपनी बदसूरत नाक रोन की तरफ मोड़ दी। इस बीच हैरी को पलटकर भागने का मौका मिल चुका था। चलो भागो, भागो! हैरी ने हरमाइनी से चीखते हुए कहा, और वो उसे दरवाजे की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। वो अब भी दीवार से पूरी तरह चिपकी हुई थी, और दहशत के मारे उसका मुंह खुले का खुला रह गया। चीखने चिल्लाने की आवाजें और उनकी गूंज से तुराल पलट रहा था। वो एक बार फिर गरजा, और रोन की तरफ बढ़ने लगा, जो सबसे करीब मौजूद था। रोन ने इधर उधर देखा, उसके पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर हैरी ने ऐसा कुछ किया जो बहुत शुजात अंगेज भी था और परले दर्जे की हमाकत भी। उसने दौड़ते हुए एक ऊंची छलांग लगाई और पीछे से तुराल की गर्दन पर लटकने में कामयाब हो गया। तुराल को कतई खबर नहीं हुई कि कोई उसकी गर्दन के अकब में लटका हुआ है, लेकिन तुराल को कुछ पता तो चलना ही था, जब अगर आप उसकी नाक में एक लंबी लकड़ी घुसेड़ दें। दरअसल हैरी जब तुराल पर कूदा था, तो उसकी छड़ी उसके हाथ में थी, जो सीधी तुराल की नाक में घुस गई थी। डर से कराहते हुए तुराल ने अपने लटको मोड़ा। हैरी अपनी जान हथेली पर रखते हुए तुराल की गर्दन पर झूल रहा था। किसी भी पल तुराल उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता था, या अपने लट से उसका कुचूमर बना सकता था। हरमाइनी डर के मारे लुढ़क गई। रोन ने अपनी छड़ी निकाली। उसे पता नहीं था कि वो उससे क्या करने वाला था, लेकिन उसने अपने दिमाग में आया पहला जादुई कलमा बोल दिया, उड़न छूतम मुतहर्रकम। अचानक तोराल के हाथ में पकड़ी हुई लठ हवा में ऊपर, बहुत ऊपर उठ गई। अगले ही साथ में लठ नीचे की तरफ लपकी, और तेज धमाके के साथ तोराल के छोटे से सर के ऊपर गिरी। तोराल की आंखों के सामने यकीनन अंधेरा छा गया था। वो अपनी जगह पर लहराया, और फिर ऊंधे मुंह जमीन पर गिरता चला गया। उसके गिरने से एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी, और पूरा बाथरूम हिलकर रह गया। हैरी को यूं महसूस हुआ जैसे बाथरूम की छत गिर जाएगी। हैरी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो बुरी तरह लरस और हाँफ रहा था। रॉन अब भी अपनी छड़ी हवा में उठाए ताज्जुब भरे अंदाज में जमीन बोस तुराल को देख रहा था कि उसने क्या करिश्मा कर दिखाया था। क, क, क्या ये मर गया है? कमरे के सुकूत को हरमाइनी की आवाज ने तोड़ा। मुझे नहीं लगता, शायद बेहोश हो गया है, हैरी ने कहा। वो झुका, और उसने तुराल की नाक में घुसी हुई अपनी छड़ी बाहर खींची, जिसके चारों तरफ गंदी सी गुठलियों वाली गोंद लगी हुई थी। ओहो! तुराल की नाक का गंध! उसने अपनी छड़ी तुराल के गंदे कपड़ों से पोंछ दी। उसी वक्त अचानक दरवाजा खुलने और धड़धड़ाते हुए कदमों की चाप सुनाई दी। इन तीनों ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि तुराल की वजह से किस कदर भगदड़ मची हुई थी। जाहिर था नीचे वाली मंजिल पर किसी ने जोरदार धमाके और तुराल की गरजती हुई चिंगार सुन ली थी। एक ही पल बाद प्रोफेसर मैकगोनागल तेजी से बाथरूम में दाखिल हुई। उनके बिल्कुल पीछे प्रोफेसर स्नेप का चेहरा नमूदार हुआ, और सबसे पीछे प्रोफेसर क्विरल का चेहरा दिखाई दिया।
क्यूरल ने हैरानगी से तोराल की एक झलक देखी और एक धीमी सिसकी जैसी आवाज निकाली। वो फौरन दोनों हाथों से अपने दिल को थामकर एक टॉयलेट पार्ट पर बैठते चले गए। प्रोफेसर स्नेप तोराल के बिल्कुल ऊपर झुके। प्रोफेसर मैगोनेगल कहर आलूद निगाहों से हैरी और रोन की तरफ देख रही थी। उनका चेहरा खौफ से फक पड़ा हुआ था। हैरी ने पहले कभी इतने ज्यादा गुस्से में उन्हें नहीं देखा था। गुस्से की वजह से उनके होंठ सफेद हो चुके थे। ग्रीफिंडर के लिए 50 पॉइंट हासिल करने का ख्याल हैरी के दिमाग में इस साथ में काफूर होकर रह गया था। तुम लोगों ने क्या सोचकर ये सब किया? प्रोफेसर मैगोनेगल ने निहायत सर्द और खश्मगीन लहजे में गुर्राते हुए कहा। हैरी ने रोन की तरफ देखा जो अब भी अपनी छड़ी हवा में उठाए खड़ा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अब तक जिंदा हो। तुम लोग अपने कमरे में क्यों नहीं गए थे? उसी लम्हे प्रोफेसर स्नेप ने चुभने वाली एक कड़ी निगाह उन पर डाली। हैरी सर झुकाकर फर्श की तरफ देखने लगा। वो सोच रहा था कि काश रोन अपनी छड़ी का रुख नीचे की तरफ कर दे। फिर तारीक साए के बीच में से एक बारीक और तीखी आवाज गूंजी। प्रोफेसर मैगोनेगल, ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मिस ग्रेंजर? प्रोफेसर मैगोनेगल का मुंह खुला का खुला रह गया। हरमाइनी आखिरकार अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब हो गई थी। मैं तोराल को ढूंढने गई थी क्योंकि मैंने सोचा मैं तन्हा ही उससे निपट सकती हूँ, क्योंकि मैंने तोराल के बारे में सब कुछ पढ़ रखा था। रोन के हाथ से छड़ी छूटकर नीचे गिर पड़ी। हरमाइनी ग्रेंजर अपने उस्तादा के सामने सफेद झूठ बोल रही थी। अगर उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। हैरी ने उस तोराल की नाक में अपनी छड़ी घुसाई और रोन ने इसकी की लट से उसे बेहोश कर दिया। इनके पास इतना वक्त नहीं था कि ये किसी को ढूंढते और इसकी मदद लेते। जब ये लोग यहाँ आए तो तोराल मुझे बस जान से मारने ही वाला था। हैरी और रोन ने ऐसी नजरों से देखने की कोशिश की जैसे ये सब उनके लिए बड़ी अनोखी बात थी। इस वकूए में प्रोफेसर मैगोनेगल ने इन तीनों की तरफ घूरते हुए कहा। मिस ग्रेंजर, अहमक लड़की, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम इस भारी भरकम और बुलंद पहाड़ जैसे तोराल से तन्हा ही निपट सकती हो? हरमाइनी ने अपना सर झुका लिया। हैरी के पास अल्फाज नहीं थे। हरमाइनी कवानीन के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती थी और यहाँ वही इन्हें बेगुनाह साबित करने और इस मुसीबत से निकालने के लिए मनगढ़ंत कहानी घड़कर सारा इल्जाम अपने सर पर लेने पर तुली हुई थी। ये तो वैसी ही बात थी जैसे प्रोफेसर स्नेप अचानक इन्हें मिठाई बांटने लगे। मिस ग्रेंजर, इस गलती के लिए ग्रिफिंडर के 50 पॉइंट काट लिए जाएंगे। प्रोफेसर मैगोनेगल ने सपाट लहजे में कहा। मैं तुमसे बहुत मायूस हुई हूँ। अगर तुम्हें चोट नहीं आई तो बेहतर यही होगा कि तुम सीधे ग्रीफिंडर मीनार के हाल में चली जाओ। तलबा अपने अपने फरीकों के हाल में ज़ियाफत के लजीज पकवान से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हरमाइनी ने सर झुकाया और खामोशी से बाहर निकल गई। तो मैं अब यही कहूंगी कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी, वरना साले अव्वल का शायद ही कोई तालिब इल्म ऐसा होगा जो खुद से 5 गुना बड़े ताकतवर और देव हैकल तोराल का मुकाबला कर सकता हो। तुम दोनों को ग्रिफिंडर के लिए 5-5 पॉइंट्स दिए जाते हैं। प्रोफेसर डंबलडोर को इसकी खबर दे दी जाएगी। अब तुम दोनों जा सकते हो। वो दोनों तेजी से कमरे के बाहर निकले और तब तक कुछ नहीं बोले जब तक वो बालाई मंजिलों का रास्ता तय नहीं कर चुके। दूसरी बातों को छोड़ ये बात ज्यादा उम्दा थी कि तोराल के जिस्म से फूटने वाली बदबू से निजात बड़ी फरत अंगेज महसूस हो रही थी। हमें कम से कम 10 पॉइंट ज्यादा मिलने चाहिए थे, रोन ने शिकायती अंदाज में कहा। तुम्हारा मतलब है 5 पॉइंट से ज्यादा, क्योंकि 5 पॉइंट्स तो हरमाइनी की वजह से कम हो गए थे, हैरी ने हैरत से कहा। ये उसने अच्छा किया कि हमें मुसीबत से बचा लिया। ख्याल रहे कि हमने उसे बचाया था, रोन ने मुंह बसोर कर कहा। अगर हमने तोराल को उसके साथ बाथरूम में मकफल ना किया होता तो उसे बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हैरी ने रोन को याद दिलाया। वो फरबा खातून की तस्वीर के सामने पहुंच चुके थे। हैरी ने फरबा खातून को शनाख्त बताई और फिर रास्ता खुलने पर दोनों अंदर दाखिल हो गए। ग्रिफिंडर हाल खचाखच भरा हुआ था और जबरदस्त हंगामा खेज मंजर इनकी निगाहों के सामने था। हर एक उन खानों पर टूटा पड़ा था जो उनके लिए ऊपर भिजवाया गया था। बहरहाल दरवाजे के पास हरमाइनी अकेली खड़ी इन दोनों का इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक बहुत अजीब सी खामोशी छाई रही। फिर इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखे बिना शुक्रिया के अल्फाज का तबादला किया। वो अपनी प्लेटें उठाने के लिए तेजी से चल दिए। उसी पल से हरमाइनी ग्रेंजर उनकी दोस्त बन चुकी थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें एक साथ करने के बाद आप एक दूसरे को पसंद किए बिना नहीं रह सकते, और 12 फीट तवील तोराल को बेहोश करना उनमें से एक है।